Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. Continue. So tell me, how many of you know about neurological disorders? What is a neurological disorder? मिक्स दोनों करके कीजिए। आप में से कितने लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पता है? कोई मुझे बता पाएगा? एक ब्रीफ, एक वेग आइडिया, कुछ भी चलेगा जैसे आपको कंफर्टेबल हो। No, ma'am. Okay, so can anybody tell me what is neuro? Neuro क्या होता है? Nervous system. Sorry? Nervous system. Yes, nervous system. So neurological disorder मतलब the disorders related to the nervous system. अभी nervous system में क्या क्या आता है? Any idea, anyone? Brain, spinal cord, Yes. Cord, Brain, spinal cord, cerebellum, muscle movement. peripheral. कौन सा है? lecture. Just copy it. ये है ना? हाँ. ये दोनों है ना? हाँ. Just a minute, class. कंटिन्यू। Yes. So कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो अपने अपने आसपास या कहीं कुछ देखा होगा? एपिलेप्सी, सेरेब्रल पाल्सी, ब्रेन ट्यूमर। वेरी गुड। आगे? न्यूरोमस्कुलर डिसीज इज आल्सो देयर। How am I supposed to slide? नहीं स्लाइड ये आपका कैमरा इस पे लगाइए। ये आपका माइक है। अच्छा। वो मैं कर रहा हूँ। आपकी स्लाइड कैसे चल रही वो मैं Yeah. Yes, guys. How am I supposed to slide? Thank you. ये सब पेन ले लेना, जो भी लिखना है। So guys, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम क्या क्या देखेंगे? डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द नर्व एंड मसल्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, स्ट्रोक, एपिलेप्सी, हेडेक एंड फेशियल पेन, neurological infections, head injury and tumor, spinal cord condition, congenital disorders and dementia. Basically, there are hundreds of neurological disorders, but these few we see in our day-to-day life, in hospitals, in our surrounding, neighbors. So these are the most common which we will discuss today. So, can anybody tell me what is this? Class? ब्रेन। My drawing is not that good, but still, come on. Yes, very good. Yes. Please don't focus much on my drawings. I know it's very bad. So this is brain and this is the vertebrae, जिसके अंदर से spinal cord पास होता है, spinal nerves पास होते हैं, इसके बीच में spinal cord होता है, उसमें से spinal nerves पास होते हैं, ठीक है? अब ब्रेन के सेल्स को क्या बोलते हैं हम ब्रेन के सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं क्लास? मैं बस आपको
अभी बेसिक सिखा रही हूँ ताकि बाद में जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। हम ब्रेन के सेल्स को क्या बोलते हैं? Neurons. Very good. See, these neuron, the upper part of the neuron is called axon. This is called axon, ठीक है। And this thing you see here is called myelin sheath. ये myelin sheath होता है, ठीक है। All the neurons are connected through axons. ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरे एक्सॉन से कनेक्टेड होगा। सारे न्यूरॉन एक दूसरे से थ्रू एक्सॉन्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो वी विल सी डिसऑर्डर्स कि अगर एक्सॉन को डैमेज हुआ तो क्या होगा, अगर माइलिन शीथ को डैमेज हुआ तो क्या होगा। तो बेसिक फंक्शन माइलिन शीथ का क्या होता है कि टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, टू ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। एम आई क्लियर? Students, we will make this an interactive session. You don't have to just listen. I want answers too. Anybody have any doubt in basics? No. Yes. Okay. Next, we will see disorders related to nerve and muscles. अभी इसमें हम 4 चीजें देखेंगे। पहली है न्यूरोपैथी, मायस्थेनिया ग्रेविस, muscular dystrophy and myopathy. Let's start with neuropathy. Neuropathy मतलब क्या होता है कि when there is injury to nerves which causes tingling, numbness, paresthesia, that is called as neuropathy. अभी न्यूरोपैथी के भी टाइप्स होते हैं। मोनोन्यूरोपैथी मतलब क्या होता है कि डैमेज टू वन, मोनो मतलब होता है वन, डैमेज टू वन इज कॉल्ड मोनोन्यूरोपैथी। सो इसमें द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज डायबिटीज। व्हाई ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेशराइजेशन ऑफ द nerve pressurizes and the sensation is not able to pass through the nerve as accurately जितना होना चाहिए। Is everybody comfortable with my speed and language? Any doubts? No, it's okay, ma'am. Right. It's okay. Very good. Now one more thing जो मैं बेसिक्स में आप लोग को बताना चाहती हूँ कि this is the brain. हमने स्पाइनल कॉर्ड देखा, ठीक है। अभी suppose this is my hand. Please imagine this is a hand, okay? Use your imagination, not see my drawings. अभी समझो कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपको किसी ने मारा फटाक से, आप क्या करोगे? आपको उसके हाथ का फील हुआ, आप पलट के देखोगे किसने मारा, क्यों मारा, ठीक है। बट हाउ दिस इज वर्क, ठीक है, किसी ने आपको मारा, आपके स्किन को फील हुआ, ठीक है, दैट विल गो अप थ्रू द नर्व्स टू योर ब्रेन टू अ सेंटर। आपके नर्व्स के थ्रू दैट विल गो टू द ब्रेन टू अ सेंटर। इट इज कॉल्ड असेंडिंग पाथवे। असेंडिंग मतलब कि आपको जो भी सेंसेशन हो रहा है, समझो आप चाय उठाने गए, चाय गरम लगा, आप क्या करोगे? छोड़ दोगे तुरंत। दैट इज यू फील वाया असेंडिंग पाथवे। आपने कब छुआ? गरम लगा, ठीक है, ये गरम आपके ब्रेन को गया। अभी आपका ब्रेन क्या बोलेगा? छोड़ रहे बाबा, बहुत गरम है, हाथ जल जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? ये आपका डिसेंडिंग पाथवे, आपको आपका ब्रेन ऑर्डर देगा कि बाबा बहुत गर्म है, थोड़ा छोड़ दो या तो फूंक मारो। दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग पाथवे, ठीक है। अब मोनोन्यूरोपैथी में क्या होता है कि नॉर्मली द असेंडिंग पाथवे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए सेंसेशन स्लो हो जाते हैं। असेंडिंग पाथवे क्या करता है? सेंसेशन पास करता है ऊपर कि ऐसा हो रहा है, फिर ब्रेन प्रोसेस करता है, फिर ब्रेन नीचे भेजता है कि चलो इसको हम ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। एम आई क्लियर? Yeah. वेरी गुड। ओनली वन बॉय इज आंसरिंग, बाकी सारे कहाँ गए? ठीक है। पॉलीन्यूरोपैथी, पॉली मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा पॉली मतलब क्या होता है? विल एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज पॉली? Multiple. वेरी गुड। पॉलीन्यूरोपैथी मतलब देयर इज डैमेज टू मल्टीपल नर्व्स। सी, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, आपको नाम में ही पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है,
Am I clear? आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कंडीशन क्या है। न्यूरोपैथी का मतलब सबको समझा स्टूडेंट्स? I hope all of you are clear what is meant by neuropathy. Are you clear? Yes, Should I explain again? it's okay. Yes, very good. पॉली मतलब मैनी। जब बहुत सारे नर्व्स को डैमेज हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूरोपैथी। अभी पेरिफेरल, पेरिफेरी मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज पेरिफेरी? Away from central. पेरिफेरी मतलब दूर का, ठीक है। डिस्टल, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। डिस्टल इज सपोज ये मेरा बॉडी का मिड लाइन है, ठीक है। जो दूर होगा जैसे कि हैंड्स, फीट, दैट इज कॉल्ड डिस्टल। जो पास होगा जैसे कि क्लैविकल, फेस, दैट इज प्रॉक्सिमल, ठीक है। पेरिफेरल मतलब कि दूर से, मतलब जो पैर से नीचे से ऊपर आती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्व्स। अभी पॉलीन्यूरोपैथी कैसे होती है? डिस्टल सिमेट्रिकल पैटर्न। डिस्टल मतलब क्या था, मैंने अभी बताया था। कौन बोलेगा डिस्टल का मतलब क्या होता है? कम ऑन। डिस्टल मतलब होता है दूर, मिडलाइन से जो दूर होता है उसको हम डिस्टल बोलते हैं। मिडलाइन के जो पास होता है हम उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, ठीक है। डिस्टल मतलब दूर, ठीक है। सपोज ये कोई है, ठीक है, सम ह्यूमन बीइंग एक्स वाई जेड, ठीक है। डिस्टल, डिस्टल मतलब नीचे से चालू होगा, दूर से चालू होगा और ऊपर प्रॉक्सिमल की तरफ जाएगा। सिमेट्रिकल मतलब सिर्फ एक पैर में नहीं चालू होगा, दोनों पैरों में चालू होगा, एक साथ चालू होगा। लोअर लिम्स पहले अफेक्ट होते हैं अपर लिम्स से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसके कॉजेस क्या है, क्यों होता है? नर्व्स में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्यों होगा? कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई आपने टॉक्सिन इनहेल कर लिया, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। Am I clear, class? Yes, ma'am. I hope I am, because none of you are replying and I want this to be an interactive session. I am not giving lecture to myself. Come on, buckle up. Now, what is diabetic neuropathy? We will see. Diabetic neuropathy is very common nowadays in India. India is the diabetes capital of the world. We are having the most patients of diabetes. That could be because of a lot of reasons. Our diet, our lifestyle. So we should know what is diabetic neuropathy because ये बहुत commonly दिखता है लोगों में, ठीक है। अभी ये क्या होता है? acute painful neuropathy। उनको पेन होता है, पेन मतलब कैसा? सेंसेशन नहीं हो रहा। जो अभी जैसे मैंने कुछ पकड़ा है, अभी जैसे मैंने गर्म चाय पकड़ी, मुझे गर्म लगी, मैंने छोड़ दी, उनको थोड़ी देर बाद वो पता चलेगा कि गर्म है, तब तक वो बर्न तक कॉज कर सकता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है? कांस्टेंट बर्निंग, जलन, ठीक है। ऑल्दो हम ये इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे कि टाइप ऑफ पेन, बट स्टिल मैं अभी एक ब्रीफ दे देती हूँ आपको कि जब भी नर्व इंजरी होती है आपको, ठीक है, तो नर्व इंजरीज का जो पेन होता है दैट इज बर्निंग, जलन। पेशेंट आपको बोलेगा कि मुझे जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है मेरे पैर में या हाथ में, ठीक है। पैरेस्थेशिया मतलब एबनॉर्मल सेंसेशन। शूटिंग पेन, पेशेंट आपको बोलेगा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर से एकदम शार्प शूट कर रहा है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, वही जो मैंने आगे बताया था कि सिमेट्रिकल, आपके सिर्फ एक पैर में नहीं चालू होगा, होगा तो दोनों में होगा, ठीक है। अभी कहाँ? फीट ऑफन। अभी वेस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज वेस्टिंग? कोई मुझे बताएगा? क्लास कम ऑन, व्हाट इज वेस्टिंग? वेस्टिंग, ओके, आई एम आस्किंग क्वेश्चन और मैं ही आंसर कर देती हूँ, ठीक है। चलो, वेस्टिंग मतलब क्या होता है? वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि समझो ये मसल है, ये अपने काफ मसल है, ठीक है। और आप कोई मसल अगर अप्रोप्रिएटली यूज नहीं करोगे तो वो डिसयूज में चली जाएगी। तो डिसयूज का मतलब होता है वेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग में चली जाएगी, मसल वीकनेस में चली जाएगी, ठीक है। अब मसल वीकनेस में चली गई तो उसके बाद क्या हो जाएगा? वीकनेस,
अब हमने हमने देखा है कि लोअर लिम्ब से ही चालू होता है, मसल वीकनेस में चला गया, वेस्टिंग में चला गया, तो क्या चांसेस बढ़ेंगे, पेशेंट का बैलेंस नहीं होगा, पेशेंट चलने जाएगा, स्टेप गलत पड़ेंगे, ठीक है। जो लोअर लिम्ब के मसल्स है वो बॉडी का वेट कैरी नहीं कर पाएंगे, फॉल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो लीडिंग टू फॉल्स, ठीक है। एंड डिस्कम्फर्ट, मतलब that irritation is so much because of the burning sensation of the nerve that even the touch of the cloth on your skin will get you irritated, ठीक है। and because of the very same reason, that irritating feeling of the burning sensation of the nerves will cause insomnia. कोई मुझे बताएगा insomnia क्या होता है? No sleep. No नींद sleep. नहीं आना। Sorry, am I clear class? कोई मुझे Yes. फटाक से एक डायबिटिक न्यूरोपैथी का ब्रीफ दे देगा, कम ऑन, जो भी 2-4 लाइन आपको समझा, तो एटलीस्ट मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ रहा है, तो आई विल बी रिलीव कि चलो मैं ठीक ठाक बता रही हूँ। कम ऑन क्लास, जस्ट 3 लाइन्स में, 2 लाइन में जो भी आपको समझा है, प्लीज somebody. It damages the nervous system and the nerve vessels. Sorry, It damages the nerve vessels also. damages the Blood vessels. no honey, we are not on the blood vessels, no blood vessels, we are dealing with the neurological system, no blood vessels, ठीक है। the nervous system, the nerves are getting damaged, so because of the nerve damage burning sensation आ रहा है, ठीक है। but good try, thank you so much. Discomfort and insomnia. Sorry, Burning sensation, discomfort, fall of the muscles, fall of this thing, and insomnia due to that. very good. now we will see nerve compression. compression मतलब क्या होता है, बताओ मुझे कोई, what is compression? compress कर दिया, दबा दिया। दब गया. yes, very good. what is your name? Amit Kadam. very good Amit, very good. nerve compression is दब गया, दबा दिया, ठीक है। अभी मीडियन नर्व कंप्रेशन, अभी नर्व कंप्रेशन की वजह से क्या क्या कंडीशन होते हैं, मीडियन नर्व, ठीक है, यहां से जाती है, ठीक है। अगर मीडियन नर्व नॉर्मली फोराम में कंप्रेस होती है, हमको कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। सुना है किसी ने कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में? No मैम. बताती हूँ मैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारी मीडियन नर्व यहाँ पे कंप्रेस होती है, ठीक है। अभी नर्व्स फ्लेक्सर्स मसल को सप्लाई करती है, these muscles are called flexors muscle of wrist, okay। so nerve compress हो रही है, मतलब अभी देखो, अभी how the nerves and the muscles are related, I will just tell you, ठीक है। समझो कि this is a neuron, ठीक है। neurons are the cells of the brain, ठीक है। so this is the neuron ending and suppose this is my muscle. अब कोई भी मसल जो आपका फेवरेट मसल हो, अमित व्हाट इज योर फेवरेट मसल? बाइसेप्स, बैक. हाँ हाउ टू मिनिमाइज दिस, जस्ट अ सेकंड, हाँ हो गया। सपोज दिस इज द बैक मसल, ठीक है। डू यू जिम अमित? Yes, I am a national player in bodybuilding. गुड, वेरी गुड, देन यू मस्ट बी नोइंग डेडलिफ्ट, है ना? ठीक है, तो समझो ये आपका नर्व एंडिंग है, ये आपका मसल है। अभी कैसे होता है कि सपोज आपको डेडलिफ्ट के टाइम पे इंजरी हो गई, ठीक है, तो अभी आप उठा रहे हो, आपका बैक कर्विंग हो गया, बैक पे प्रेशर आ गया, आप क्या करोगे? वेट छोड़ के पहले सीधे हो जाओगे, ठीक है। पर ये कैसे होगा? योर मसल फेल्ट द इंजरी थ्रू असेंडिंग पाथवे वेंट टू द ब्रेन, ठीक है। अब ये समझो, अब ब्रेन से वापस आपको सिग्नल आ रहा है कि क्या करना है। दिस ऑल हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, हमको पता भी नहीं चलता है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। ये ब्रेन का न्यूरॉन है, ये आपका मसल है। ब्रेन यहाँ से एसिटाइलकोलिन ACH करके एक रिसेप्टर होता है, वो छोड़ेगा नर्व एंडिंग और आपका मसल को एक्सेप्ट करेगा, एंड देन दैट्स हाउ द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड थ्रू द नर्व्स टू द मसल दैट बाबा करना क्या है। Are you getting me?
So okay, we went थोड़ा सा out track, ठीक है? So how carpal tunnel syndrome is affected, that I'll tell you, ठीक है? So because the nerve compress हो जाता है, ठीक है? So do you think जो conduction करके वो muscle को signal दे रहा है वो उतना अच्छा दे पाएगा? No. दे पाएगा, क्योंकि नर्व पे कंप्रेशन है, ठीक है? तो जो मसल का फंक्शन है, ठीक है, जैसे मीडियन नर्व फ्लेक्शन करता है, ठीक है, क्या ये फंक्शन इतना अच्छे से हो पाएगा? Never. वेरी No. गुड। तो कार्पल टनल में यही होता है कि नर्व कंप्रेस हो जाता है, फंक्शन अफेक्ट हो जाता है। अभी मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर नर्व कंप्रेस होता है तो क्या सिम्टम्स बताए थे मैंने, कैसा लगता है? बर्निंग, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है। होता है कई बार। यस, वेरी गुड। अभी अल्नर नर्व कंप्रेशन। अल्नर नर्व, देखो यहाँ पे 3 नर्व आते हैं हैंड में, ठीक है, ठीक है, रेडियल, मीडियल एंड अल्नर, ठीक है। अभी एक मीडियन का देखा, मीडियन हो गया। एंड कार्पल टनल सिंड्रोम, आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर, बिकॉज बहुत लोगों को होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, फिर होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, ओके। अभी अल्नर नर्व कंप्रेस होती है, कहाँ पे? एपिकॉन्डाइल। अभी सब अपने एल्बोज उठाओ एंड जस्ट फील दिस, कैन यू फील द पोनी प्रोजेक्शन हियर? Yes. अंदर वाला इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉन्डाइल, बाहर वाला इज कॉल्ड लैटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। तो जब एपिकॉन्डाइल से अल्नर नर्व पास होती है और वो जब कंप्रेस होती है तो आपको नॉर्मली रिंग फिंगर, देखो अल्नर नर्व ना, इसको दिख रही है मेरी ये 2 फिंगर्स, Yes. दिख रही है? वेरी गुड। सो अल्नर नर्व क्या करती है? लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है। आप गर्लफ्रेंड को अंगूठी कौन सा उंगली में पहनाते हो? रिंग फिंगर, ठीक है। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के को अल्नर नर्व सप्लाई करती है, और अगर अल्नर नर्व कंप्रेस होती है तो आपको यहाँ पे मतलब नमनेस और बाकी सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखेंगे। सेकेंड इज, अभी हमने 2 हाथ के देख लिए, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल मैंने लेग का भी डाला है, दैट इज कॉल्ड कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। आपके जो लेग में नी के नीचे देयर आर 2 टिबिया, फिब्यूला, ठीक है। फिब्यूला के पास से कॉमन पेरोनियल नर्व पास होती है, फुट को सप्लाई करती है, ठीक है। और ये जो आगे का मसल है, ये वाला, सब अपना शीन टच करो, एवरीबॉडी टच योर शीन। बोनी प्रोजेक्शन फील हो रहा है? शीन मतलब ये वाला पार्ट, Yes. बोनी प्रोजेक्शन फील हो रहा है सबको? Yes, ma'am. दैट मसल इज कॉल्ड tibialis anterior muscle, ठीक है। tibialis anterior muscle, पेरोनियल मसल उसको सप्लाई करती है, साथ में आपके फुट को भी सप्लाई करती है, ठीक है। अभी ये वाला मसल जो है tibialis anterior, ये आपके फुट को डॉर्सीफ्लेक्स ऊपर की तरफ लेने में मदद करता है। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट लुक एट माय फुट, ओके। tibialis anterior मसल आपके फुट को ऊपर की तरफ लेने में मदद करता है, ठीक है। अगर tibialis anterior को पर कौन सा नर्व सप्लाई करता है? पेरोनियल मसल, ठीक है। पेरोनियल मसल को डैमेज होगा तो tibialis anterior को उतना अच्छे से फंक्शन जाएगा कि क्या करना है? No. नहीं, वेरी गुड। तो जो tibialis anterior का फंक्शन है फुट को ऊपर की तरफ रखना, वो tibialis anterior नहीं कर पाएगा, तो फुट ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुट ड्रॉप, ठीक है। Even foot drop is one of the most common condition which you will see in a lot of neurological cases. Guys, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes. ठीक है। अभी नाउ GBS, ये भी आप लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा, इसको बोलते हैं ग्यूलियन बेयर सिंड्रोम, GBS। अगर फुल फॉर्म से नहीं सुना होगा तो शॉर्ट फॉर्म से तो सुना ही होगा, ठीक है। अब मुझे वापस बताओ पेरिफेरल का मतलब क्या होता है?
पेरिफेरल का मतलब दूर, डिस्टल। दूर, प्रोक्सिमल मसल दूर। यस, वेरी गुड। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब ये जो जीबीएस है ये भी पेरिफेरी मतलब दूर, ये आपका बॉडी का मिड लाइन है, ठीक है। मिड लाइन से जो भी दूर है वो पेरिफेरल या डिस्टल है। पेरिफेरल बोल लो, डिस्टल बोल लो, सेम नाम, ठीक है। जो दूर है वो पेरिफेरल है, जो पास है वो प्रॉक्सिमल है, ठीक है। तो जो जीबीएस है वो भी नीचे से ऊपर चालू होता है, इसीलिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब पहले नीचे अफेक्ट होगा, ठीक है। अभी जीबीएस में क्या बोला है, मोटर मोर देन सेंसरी नर्व। अभी हम ये सीखेंगे कि मोटर नर्व क्या होता है और सेंसरी नर्व क्या होता है। वेल आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि मोटर नर्व क्या होता है और सेंसरी नर्व क्या होता है। आप लोग मुझे खुद ही आंसर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने चाय पकड़ी, गरम चाय, एकदम गरम गरम चाय मम्मी ने निकाली और अचानक से पकड़ ली, आप लोग हाथ छोड़ देंगे तो एक सिग्नल जाएगा कि कुछ तो गरम पकड़ा है, वो आपके स्किन से आपके ब्रेन को जाएगा, स्किन से ब्रेन को जाएगा कि अरे कुछ तो गर्म है, तो दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व, दैट इज कॉल्ड सेंसरी सेंसरी। नर्व। यस, बिकॉज ये आपके सेंसेस आपके ब्रेन को सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है। अभी आपका ब्रेन जो आपको कमांड देगा कि अरे छोड़ बर्न हो जाएगा, आपके ब्रेन से जो आपके ब्रेन से जो आपको सिग्नल आ रहे हैं, दोज आर कॉल्ड मोटर नर्व, दोज आर कॉल्ड मोटर मोटर नर्व्स। नर्व। अब मुझे कोई भी एक एग्जांपल दो सेंसरी और मोटर का अपने लैंग्वेज में, मतलब कुछ भी कुछ भी, जैसे हमने एक चाय वाला पकड़ा, कोई भी मुझे कोई भी एक एग्जांपल देगा सेंसरी मोटर का, so that all will be able to understand better. हाथ में आइस पकड़ के रखो कि मालूम पड़ जाएगा सीधा। हाँ, आइस तो हमने क्यूब। इसमें सेंसरी क्या है, मोटर क्या है, मुझे ये बताओ। सेंसरी में एकदम ठंडा लगा तो सीधा सेंस गया ब्रेन के अंदर, वो ठंडा लग रहा है, और ब्रेन मैसेज छोड़ेगा कि भाई हाथ छोड़ दो या गिरा दो, नहीं तो डैमेज हो जाएगा ज्यादा, फिर वो मोटर नर्व। वेरी गुड, व्हाट इज योर नेम? चेतन ठक्कर। केतन, वेरी नाइस, वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। जीबीएस कैसे, एक तो जीबीएस समझा क्या होता है, पेरिफेरल, पहले पेरिफेरी अफेक्ट होगा, फिर ऊपर 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 अफेक्ट होगा, ठीक है। मोटर नर्व ज्यादा अफेक्ट होगा, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे गर्म लगा, मेरे ब्रेन को सिग्नल तो पहुंचा, ठीक है, बट ब्रेन से जो सिग्नल वापस हाथ को पहुंचना चाहिए वो जो पार्ट है वो स्लो हो गया है। क्या हो गया है? स्लो हो गया है, ठीक है। तो आपको पता तो है आपने कुछ गरम पकड़ा है, पर आपका ब्रेन आपको लेट सिग्नल भेज रहा है कि बाबा छोड़ इसको, समझ रहे हो। तो जीबीएस में मोटर ज्यादा अफेक्टेड होता है सेंसरी से, ठीक है। अभी इसमें क्या होते हैं, सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं ओवर डेज एंड वीक, ठीक है। जीबीएस एक और चीज इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इट इज नॉट कंजेनाइटल, मतलब बाय बर्थ नहीं होता है, ठीक है। यू हैव अक्वायर्ड जीबीएस थ्रू इन्फेक्शन। सिम्टम्स ओवर डेज एंड वीक्स, बायलैटरल फ्लैसिड वीकनेस। अभी देयर आर टू थिंग्स, फ्लैसिड एंड स्पास्टिक। आप लोगों को पता भी है फ्लैसिड क्या है, जस्ट दैट आप लोगों को पता नहीं होगा कि दैट वर्ड इज कॉल्ड एज फ्लैसिड। हमने पेशेंट्स देखे हैं स्ट्रोक के, या कुछ पेशेंट्स इतने स्टिफ हो जाते हैं, इतने स्टिफ कि उनका हाथ या पैर या कोई मूवमेंट करने में हमको बहुत ताकत लगाना पड़ता है, तो खींचना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्पास्टिक, ठीक है। और कुछ का मतलब बिल्कुल स्ट्रेंथ ही नहीं रहता, अगर आप हाथ ऐसे उठा के छोड़ोगे तो ऐसे पूरा का पूरा हाथ गिर जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्लैसिड। नो पावर इज कॉल्ड flaccid, no power is called flaccid। मैंने आपका हाथ उठाया छोड़ा, अगर एक नॉर्मल इंसान, आप एक मिनट आएंगे, आई कैन टेक द मॉडल, एनीबॉडी, यू विल बी कंफर्टेबल, थैंक यू। ये सर का हाथ मैंने उठाया और मैंने छोड़ा, क्या सर का हाथ नीचे गिर रहा है? नहीं, बिकॉज सर के हाथ में स्ट्रेंथ है, तो सर अपना हाथ ऊपर होल्ड करके रख पा रहे हैं। बट अगर ये पेशेंट रहा जीबीएस का, या कोई भी फ्लैसिड पेशेंट रहा, तो मैं जैसे ही हाथ उठाऊंगी पेशेंट के हाथ में कोई पावर नहीं होगा और मेरे छोड़ते ही पेशेंट का हाथ नीचे गिर जाएगा,
क्या ये देखा आप लोगों ने? Yes, ma'am. एग्जाम्पल ऑफ फ्लैसिड पेशेंट. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सर ये पैरालिसिस में भी होता है ना मैम, फिर ये सर इस तरह चीज को? Yes, this will happen in stroke also. Stroke can be spastic, stroke can be flaccid. ठीक है, that we will cover in stroke. अभी loss of tendon reflex. ठीक है, अब tendon reflex क्या होता है कि there are tendons, wrist, elbow, bicep tendon हो गया, tricep tendon हो गया, knee, ankle. ठीक है, अभी हम through hammer test करते हैं. ठीक है, टेस्टिंग हैमर होता है. We will jerk on the tendon and then tendon अपना रिफ्लेक्स देगा. मतलब जैसे ये मेरा बाइसेप टेंडन है, ये दिख रहा है सबको? ये Yes, मैंने ma'am. टेंडन पैल्पेट Yes. किया, बाइसेप टेंडन पे हैमर मारा और फिर रिफ्लेक्स आएगा, वो टेंडन का एक्शन होगा. तो इसमें क्या होता है, क्योंकि मसल में कोई स्ट्रेंथ नहीं है तो टेंडन में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं होगा, तो आपको कोई रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, may affect muscle of respiration. Muscle of respiration is diaphragm. This is ribs. Imagine, use your imagination, guys. My drawing is not that good. This is ribs. ठीक है, और डायफ्राम एक थैली जैसा होता है. ठीक है, यू ब्रीथ. ठीक है, डायफ्राम एक्सपांड होता है. यू ब्रीथ, डायफ्राम एक्सपांड होता है. यू एक्सेल, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है. एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ऐसे ही जैसे ये नीचे से ऊपर ये डिजीज प्रोग्रेस करेगी, जब ये डायफ्राम पे पहुंचेगी, रिब्स के पास पहुंचेगी, तब मसल ऑफ रेस्पिरेशन भी अफेक्ट होगा. बर्निंग, पेन एंड नमनेस. अब तो ये आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि अगर नर्व इंजरी है तो कैसा वाला पेन होगा? बर्निंग. कैसा वाला पेन होगा? बर्निंग. I will just give you as I just met a friend here. Just a second. Please say hello to your friend because he is going to help you to understand. Okay? ये है biceps. ठीक है, सपोज ये है biceps. यहाँ पे आएगा. अब मैं आपको बस टेंडन क्या है, लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स वो बता रही हूँ. ये है biceps, ये है बाइसेप्स टेंडन. ठीक है, अगर मैंने बाइसेप्स टेंडन को जोर से मारा तो बाइसेप का एक्शन होगा. मैंने बाइसेप, ये रहा टेंडन, मैंने बाइसेप टेंडन को जोर से हैमर से मारा तो बाइसेप का एक्शन होगा. क्या होगा? बाइसेप का एक्शन. बट अगर फ्लैसिड है पेशेंट तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं होगा, तो मैं कितना भी मारूं हैमर से चेक करने के लिए, कोई एक्शन नहीं होगा. That was GBS. ठीक है. Now next is myasthenia gravis. Also one of a very common condition we see nowadays. The first word in myasthenia gravis is autoimmune disorder. Autoimmune disorder मतलब क्या होता है? What is autoimmune? और कोई मुझे बताएगा what is immunity system? Defense mechanism of the body. Very good. कोई मुझे बताएगा ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो Molecule. बॉडी खुद ब खुद कब करती है एक्शन? यस. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ये खुद को खुद ही डैमेज कर रहा है. घर का बेदी लंका ढाए, सुना है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अंदर ही कोई है जो खुद को डैमेज कर रहा है. ठीक है, मोस्ट पेशेंट है. अभी वो एग्जाम्पल याद है क्या, नर्व और मसल वाला? नर्व जब नर्व टू मसल होता है, ना नर्व टू मसल ट्रांजैक्शन होता है. अब ब्रेन ने सिग्नल तो फॉर्म कर लिया कि ऐसा करना है, पर ये ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं ये मसल को बताने वाले हैं कि ये करना है. ठीक है, तो ब्रेन एसिटाइलकोलिन करके सिक्रीट करता है रिसेप्टर जो आपका मसल एक्सेप्ट करता है. ठीक है, और फिर मसल को एक्शन करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, अभी इसमें जो ब्रेन एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करता है उसके अगेंस्ट ही आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है. एंटीबॉडीज मतलब फाइटर सेल्स. ठीक है, ये एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट फाइटर सेल्स बना देती है बॉडी.
तो वो जो एसिटाइलकोलिन है वो आपका मसल रिसीव ही नहीं कर पाता, तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है या स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए ये पेशेंट्स बोलेंगे कि जरा सा भी चल लिया, बैठ लिया, इवन मिनिमम सब्जी काटने तक, इतने छोटे छोटे चीजों में भी वो फिर जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, अभी इसका ये क्या है, 0.4 in 1 lakh patients, 0.4 cases in 1 lakh patient, but this is not a updated value। अभी फीचर्स क्या है, फटीग, आप बहुत जल्दी थक जाओगे। ठीक है, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, दो चीजें दिखती हैं। फेशियल वीकनेस, अभी एवरीथिंग इज मसल, हेड टू टो सब मसल है, तो जब मस्कुलर वीकनिंग होगा तो सिर्फ हाथ का पैर का नहीं होगा, फेशियल वीकनेस यू विल बी एबल टू सी। डिस्फेजिया मतलब स्वॉलोइंग, मैंने स्वॉलो किया, इजीली किया, पर इन पेशेंट्स को स्वॉलो करने में 7, 8, 10 अटेम्प्ट्स लगते हैं, और इसलिए इस पेशेंट को हम चर्न फूड देते हैं, मतलब छोटा छोटा करके। डिसआर्थरिया, बोलने में तकलीफ, या तो मतलब इनको जो स्पीच बन रहा है ब्रेन से, ठीक है, अब आपके ब्रेन में सिग्नल जा रहा है ये बोलना है, बट वो चीज आपके मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है ये बोलना है करके। ठीक है, डिसआर्थरिया, बोलने में तकलीफ। नेक, लिम्फ, बाकी मस्कुलर वीकनेस, और डेफिनेटली इवन डायफ्राम इज अ मसल जो सांस लेने में हेल्प करता है, तो वो भी अफेक्ट होगा। ये जस्ट आपके लिए एग्जांपल दिया है मैंने कि ये समझो आपका मसल है, ये आपका नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग यहाँ से एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करता है, ये एसिटाइलकोलिन आपके मसल्स पे जाके उसको सिग्नल देता है, बट इसमें क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट ही बॉडी एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देती है। मायोपैथी, अब मायोपैथी मतलब क्या होता है, मायो मतलब होता है मसल, मस्कुलर वीकनेस। अभी इसमें अपना बेचारा नर्व इन्वॉल्व नहीं है, अभी हर जगह वही इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे अपना बेचारा नर्व इन्वॉल्व नहीं है। मायोपैथीज यूजुअली क्या होते हैं, कंजेनाइटल होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। ये क्यों होते हैं, डीएनए में बाय एनी रॉन्ग, देयर इज अ कोडिंग इन डीएनए, बाय एनी रॉन्ग कोडिंग इन द डीएनए। ठीक है, सो दैट इज मायोपैथी, मस्कुलर वीकनेस। अभी ये भी प्रॉक्सिमल मसल से ही चालू होता है, दूर के मसल। ठीक है, वीकनेस ऑफ नेक, एक्सटेंशन, फेशियल, वैडलिंग गेट, वैडलिंग मतलब क्या होता है, डक गेट, ऐसे ऐसे चलना। ठीक है, नाउ स्पाइनल रूट डिजीजेस, मतलब अभी हमने ब्रेन देख लिया, बहुत ब्रेन हो गया बाबा, थोड़ा नीचे आओ, गो टू योर स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, रेडिकुलोपैथी मतलब क्या होता है, जब एक नर्व पे कंप्रेशन आ जाता है, फिर वो नर्व अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, फिर वो नर्व टिंगलिंग, नमनेस करता है, मसल को अच्छे से ट्रांसमिट नहीं करता, फंक्शन परेशान करता है, दैट इज रेडिकुलोपैथी। अब सर्वाइकल, सर्वाइकल मतलब क्या होता है, नेक, C1 to C7 सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रेज होते हैं। ठीक है, अभी किस वजह से हो सकता है, प्रोलैप्स, देखो ये वर्टिब्रा है और ये वर्टिब्रा है। ठीक है, ये बीच में डिस्क है, अगर ये डिस्क जगह से हट जाती है तो वर्टिब्रा पे वर्टिब्रा आ जाता है, दैट इज प्रोलैप्सिंग ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, यहाँ से स्पाइनल नर्व पास हो रहा है बीच में से, अब वर्टिब्रा पे वर्टिब्रा गिर गया, पीछे की डिस्क चली गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये नर्व्स डैमेज करेगा। ठीक है, नाउ अभी क्या हो सकता है, नेक पेन, मसल पेन, वीकनेस, लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स। अभी इसको कैसे ट्रीट करते हैं, ड्रग, फिजियोथेरेपी, एंड एकदम सीवियर केसेस रहा तो इवन सर्जरी इज रिक्वायर्ड। अभी प्रोलैप्स लंबर इंटरवर्टेब्रल डिस्क, तो सेम। ठीक है, ये आपका लंबर है, ये आपका लंबर है, लंबर मतलब नीचे का, योर बैक। ठीक है, ये 2 वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच में डिस्क है। ठीक है, अगर ये डिस्क डीजनरेट हो गई, डीजनरेट मतलब धीरे धीरे करके पतली हो जाना, या फिर कोई इंजरी की वजह से ये डिस्क हट गई, तो ये वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा ऊपर आ गया, प्रोलैप्स हो गया, तो ये बीच का नर्व डैमेज होगा, और ये फिर नर्व जाके नीचे के नर्व जाके कहीं भी लोअर लिम्ब
या जिसको भी सप्लाई करेगा वो फंक्शन आपका अफेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर we'll see is multiple sclerosis। ठीक है, it is the most common chronic neurological disorder affecting young people। अभी जो हमने देखा वो नॉर्मली ओल्ड पॉपुलेशन में था, ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन यंग पीपल, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस स्पॉट सीएनएस में लीजन्स आ जाते हैं, ब्रेकआउट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये फीमेल्स में मोर कॉमनली होता है। पर एक और चीज है इसमें कि जो एज है फीमेल्स में कॉमनली होने का, मेल्स में कॉमनली होने का इज वेरी डिफरेंट। एंड साइंस इज स्टिल फाइंडिंग आंसर फॉर दैट कि ऐसा क्यों है, देयर इज नो आर्टिकल फॉर दैट, ठीक है। फीमेल्स में नॉर्मली 20 to 40 एज में होता है और मेल्स में नॉर्मली 50 के बाद होता है, ठीक है। अभी कैसे होता है, क्यों होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। अभी आपके ब्रेन में दो मैटर होते हैं, व्हाइट मैटर। गाइस से ज्यादा डीप जा रहा है क्या? No problem, man. Like you guys able to understand? Yes. यस, ज्यादा डीप बोरिंग तो नहीं जा रहा ना? प्लीज लेट मी नो। नहीं, गुड मैन, बढ़िया है, ओके डीप नॉलेज। No, man. Good. ठीक है। तो अभी क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ये एक आपका व्हाइट मैटर होता है, एक आपका ग्रे मैटर होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि व्हाइट मैटर को अफेक्ट करता है, ठीक है। अभी हमने माइलिन शीट पढ़ी थी, याद है माइलिन शीट? ये जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं, ये वाली याद है? यस, यस। तो इसमें क्या होता है कि ये माइलिन शीट को डैमेज हो जाता है। अभी माइलिन शीट क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन फटाक से सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है। पर अगर माइलिन शीट अगर डैमेज हो जाती है तो वही सिग्नल पास होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और जिस लेवल पे आपकी माइलिन शीट डैमेज होना चालू होगी, ठीक है, उतना स्लो आपका फंक्शन होता जाएगा इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, मतलब कि आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, विजन ब्लर हो जाएगा, मस्कुलर वीकनेस होगा, टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन होगा, ठीक है। पार्किंसंस, सुना है ये वाली डिजीज, देखी है? यस मैम, मेनी पेशेंट्स आर कमिंग। एनी वेरी कॉमन कंडीशन पार्किंसंस, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन में एक ट्रांसमीटर है जिसको बोलते हैं डोपामिन, ठीक है। डोपामिन क्या होता है, आपका रिवॉर्ड सिस्टम होता है, ठीक है। आज जैसे आपने कुछ किया, आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, दैट इज डोपामिनर्जिक रिवॉर्ड। आप वर्कआउट करके आए, बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि डोपामिन सिक्रीट हुआ है, ठीक है। आपने कुछ लाइक एग्जाम में टॉप कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपका डोपामिन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रैक है ब्रेन में जिसको एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक बोलते हैं, जो कि डोपामिन पहुंचाता है ब्रेन के दूसरे जगहों पर ताकि आपका फंक्शन अच्छा हो। वो डोपामिन पहुंचाने का जो ट्रैक है वो ही अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो डोपामिन धीरे 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 कम होने लगता है, आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम कम होने लगता है, ठीक है। तो सिम्टम्स ये जाने देंगे, ठीक है। मीन एज इज 60 इयर्स, 60 साल के आसपास होता है ये, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, अकाइनेसिया। काइनेसिया इज मूवमेंट, अकाइनेसिया मतलब नो मूवमेंट, डिफिकल्टी इन मूवमेंट, रिजिडिटी, मसल रिजिड हो जाते हैं, ट्रेमर, ये मैंने हाथ समझो टेबल पे रखा है बट मेरा हाथ कॉन्स्टेंटली ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है। गेट, पेशेंट हमेशा ऐसे झुका हुआ रहता है, दिस इज द गेट ऑफ द पेशेंट, स्टूप्ड, झुका हुआ। चलते चलते पेशेंट फ्रीज हो जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग गेट, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, ऐसे चलते टाइम पे पेशेंट ग्राउंड क्लियर नहीं कर पाता है, स्टेप्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए उनका रिस्क ऑफ फॉल बढ़ जाता है। आर्म स्विंग जो हम चलते टाइम पे करते हैं,
बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी एंड अकाइनेसिया. रिजिडिटी मतलब कड़क हो जाना, मसल कड़क हो जाती है. अकाइनेसिया मतलब मूवमेंट. अकाइनेसिया मूवमेंट, अकाइनेसिया नो मूवमेंट. रिजिडिटी एंड नो मूवमेंट की वजह से ये जो अपना आर्म स्विंग है वो नहीं होता है. सी, कैन यू सी दिस? आप लोगों ने, आई एम 101% श्योर आपने ऐसे पोस्चर के लोग देखे हैं अपने आसपास. देखा है स्टूडेंट्स? Yes. यस. तो पार्किंसंस. अभी स्ट्रोक. स्ट्रोक क्या होता है? इट इज थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड. थर्ड सबसे कॉमन कॉज है. ठीक है. अगर आपको स्ट्रोक आया, मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. ठीक है, छोटी सी स्टोरी. जस्ट आई टेक जस्ट योर 3-4 मिनट्स. आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर. एक पेशेंट आया था स्ट्रोक के साथ. ठीक है. और फिर हमने उसको पूछा क्या आया, स्ट्रोक कैसे आया ये वो. उसने बोला मैडम 4 दिन पहले एग्जैक्टली सेम चीज हुई. मैं मार्केट में गिर गया, सब्जी वाला आया, उसने लहसुन को ऐसे हाथ से किया, तेल निकाला, हाथ में पैर में ऐसे ऐसे करने लगा, मैं 4 घंटे में उठ के चलने लगा. ठीक है. सो बट दिस काइंड ऑफ स्ट्रोक इज कॉल्ड ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक. अगर वो सब्जी वाला लहसुन नहीं घिसता वो तो भी 4 घंटे में उठ के चलने लग जाता. क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रोक्स है ये अपने आप ही 24 घंटे में रिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. अगर इससे कुछ सीवियर हुआ तो 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं. एक होता है इंफाक्शन, दूसरा होता है हेमोरेज. इन्फाक्ट मतलब क्या होता है कि वो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो वो ब्रेन का फंक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको स्ट्रोक आ जाता है. ठीक है. हेमोरेज मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन और हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर वहां पे वेसल बर्स्ट हो गई. तो आपको 2 तरह के स्ट्रोक देखने को मिलेंगे. पहला, पेशेंट बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं हो रहा था, चक्कर आया, गिर गया. दैट इज इनफैक्ट कि वो ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा काम करने के लिए. सेकेंड इज हेमोरेज. पेशेंट बोलेगा खून निकलने लगा नाक से, कान से, वहां पे पाइप बर्स्ट होती है, पानी निकलता है. ठीक है. सेम इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से बर्स्ट हुआ, यू कैन सी ब्लीडिंग. दैट्स हेमोरेजिक स्ट्रोक. अभी कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं स्ट्रोक के? नॉर्मली निमोनिया होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है. डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब नीचे के वेन्स में थ्रोम्बस गार्ड जैसा. ठीक है. इन्फाक्शन, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. नेक्स्ट इज एपिलेप्सी. एपिलेप्सी कोई मुझे बताएगा क्या होता है? मिर्गी. सीजर, मिर्गी. यस, वेरी गुड. अभी एपिलेप्सी मतलब क्या होता है? ये ब्रेन है. अच्छा, कहाँ पे ड्रॉ करूं मैं? चलो यहाँ पे ड्रॉ करूं. ये ब्रेन है. ठीक है. ये पार्ट में, ये समझो आपका फ्रंटल लोब है. ठीक है. फ्रंटल लोब आपको कोई फंक्शन करने, ये आगे का लोब है दिमाग का, आपको कोई फंक्शन करने को बोल रहा है. तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स का फायरिंग है ना, नर्व्स का फायरिंग, वो 1 by 1 होता है. एक दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, ऐसा. ठीक है. बट एपिलेप्सी में क्या होता है? सारे न्यूरॉन्स साथ में फायर करने लग जाते हैं. आपकी बॉडी को समझ में नहीं आता क्या करना है. फिर क्या होता है? ट्रेमर, गिर जाता है पेशेंट, अनकॉन्शियस हो जाता है. ठीक है. अभी 2 तरह के होते हैं, एक पार्शियल और एक जनरलाइज. ठीक है. सो जब मल्टीपल फायरिंग होता है एक साथ, तब यू कैन सी इट. ठीक है. पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, पेशेंट को डर लगने लगता है. पार्शियल सीजर मतलब आपके ब्रेन का सिर्फ एक भाग इन्वॉल्व होता है. ठीक है. जनरलाइज मतलब दोनों होते हैं. अभी हेडेक एंड फेशियल पेन. ठीक है. हेडेक का नॉर्मल रीजन क्या होता है? माइग्रेन. एक तो माइग्रेन की वजह से होता है, दूसरा टेंशन की वजह से होता है, तीसरा इंटरक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है आपके वेसल्स के बीच में, उसकी वजह से होता है. इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज, पता नहीं क्यों हो रहा है. ठीक है. फेशियल पेन किस वजह से होता है? नॉर्मल मतलब there could be a lot of reasons, but we are just covering the most normal conditions. Trigeminal neuralgia. ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो आपके फेस को सप्लाई करती है. ठीक है. फेशियल पेन का ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है. बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इस कॉज के साथ आते हैं. ठीक है. तो वो जब नर्व कंप्रेस हो जाती है, मसल्स को फंक्शन नहीं मिलता, तो इस वजह से दे फील द पेन.
Migraine. What is migraine? It is unilateral headache. ठीक है, one part will start paining. ठीक है, associated with, not in every patient, but in some patients you can feel nausea, vomiting, visual disturbances. ठीक है, इसमें और क्या होता है? वैसोडाइलेशन होता है, मतलब जो नर्व्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? Either medications, and in some we won't cover the medication part. Medication, or we will tell the patient to rest. अदर हेडेक क्या है? क्लस्टर हेडेक. ठीक है, इसमें क्लस्टर हेडेक हम सबको कभी ना कभी फील हुआ ही है. We'll just feel the pain around one side of the head. Our eyes will start paining, and even that side of the head will start paining. That is called a cluster headache. ये कहाँ से लेके कब तक चलता है? 20 से लेके 20 minutes to लेके 2 hours तक होता है. It can occur a lot of times in a day. ठीक है, pattern, there could be a pattern or there could not be a pattern about it. ठीक है. The next is tension type headache. Tension type headache is you are lot of stress, that for that reason आपको headache हो रहा है. But in tension type headache, patient will also complain कि मेरे को बहुत कंधे दर्द हो रहे हैं. ठीक है, in this kind of headache, the patient will come with the complaint कि मेरे को shoulders भी बहुत पेन हो रहा है. ठीक है, अभी न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं. मेनिंजिस, ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसका अगर इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेन में एब्सिस भर जाए. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, लेप्रेसी, वायरस की वजह से जो भी हो सकता है, एन्सेफेलोपैथी, हर्पीस करके होता है, हर्पीस जोस्टर. वी वोंट कवर दिस. ठीक है, अभी हेड इंजरी मतलब क्या होता है? आरटीए में दिखता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में. ठीक है, यू गो, जैसे आप सबने देखा होगा कि आप बाइक से जा रहे हैं या कोई भी बाइक से जा रहा है, आपने किसी को बाइक एक्सीडेंट देखा होगा तो आपने नॉर्मली हेड इंजरी देखी है. हेड इंजरी में क्या होता है? कंकशन एंड लैसरेशन. ठीक है, वो पार्ट कंफ्यूजन में चला गया, लैसरेशन होने लगता है. लैसरेशन मतलब ब्लीडिंग होने लगता है, फ्लूइड आउट आने लगता है. ठीक है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? हेमोटेमा. हेमेटोमा मतलब क्या होता है? अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड. इस्चीमिया का मतलब मैंने बताया था कि द पार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, सो द फंक्शन, तो जो फंक्शन है उस पार्ट का वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है. पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी ड्यू टू इंजरी ऑफ सम पार्ट इन द ब्रेन. ठीक है, एपिलेप्सी कैन ऑल्सो बी देयर. ब्रेन ट्यूमर, बेनाइन, मैलिग्नेंट. बेनाइन होता है जो कि कवरिंग के साथ आता है, जो कि फैलता नहीं है, आपने एक बार एक्सरसाइज करके निकाल दिया, टेंशन इज गॉन. मैलिग्नेंट मतलब वो जो ट्यूमर के आसपास की जो कवरिंग होती है वो नहीं होती, तो अगर एक सेल भी छूट गया तो इट कैन गो एनीवेयर इन द बॉडी एंड फॉर्म अ न्यू ट्यूमर. सेरेब्रल पाल्सी वी सी इन किड्स. ठीक है, फीटल हाइपोक्सिया, अगर बच्चा पेट में है एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इट कुड बी हैपन सेरेब्रल पाल्सी. अगर इन्फेक्शन हो रहा है, सेरेब्रल पाल्सी. प्री मैच्योर बेबी है तो भी सेरेब्रल पाल्सी के चांसेस बढ़ते हैं. ट्रॉमेटिक डिलीवरी है, मतलब जैसे कि द फॉर्सेप बेबी हो गया या ऐसा कुछ, उसमें अगर कुछ ट्रॉमेटिक इंजरी है तो सेरेब्रल पाल्सी कुड बी अ पॉसिबल ऑप्शन जो हो सकता है. अभी इसमें क्या होता है, इसके लिए टाइप्स हैं सेरेब्रल पाल्सी के. मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में व्हाट विल बी डू? व्हाट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज, एज आई टोल्ड यू, द मसल इज अफेक्टेड. ठीक है, द मसल विल गो इनटू डिस्ट्रॉफी, डिसयूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अभी जैसे डीएमडी हुआ, ठीक है, इट्स ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ठीक है, सो द मसल अपने आप डिस्ट्रॉफी में जाने लगता है, मसल अपने आप वीक होने लग जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. So this was the end of the lecture class. I hope all of you understood whatever 15 conditions I was trying to cover, because those were the most common conditions. If there is any doubt, please ask me. No, ma'am, it was a good class. Oh, did everybody understood everything? I hope you guys did. I tried my best to make it a very interactive session, one-on-one. So did you guys Yes, understand? ma'am.
Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. हेलो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया था, अच्छा था। अभी ये देखिए, ऐसा है कि कोई भी चीज है, अभी आप जब पेन पे काम करें या नीरो पे काम करें या गायनिक पे काम करें, आप किसी चीज पे काम करने के लिए आपको डेप्थ में जाना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हमको जानना है। जैसे मैं बताया कि न्यूरो है क्या, न्यूरॉन से क्या, अभी क्या ब्रेन में क्या क्या करते हैं, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, लोब होते हैं, हर लोब के अलग अलग काम होते हैं। तो इसी तरह जैसे आप ब्रेन के अंदर अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे कोई काम करना, तो सबसे पहले आपको ब्रेन को समझना होगा। तो एडवांस इंटेंसिव कोर्स का मीन्स यही है कि ये जो है, ये बेस क्या है, वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे है। अब इसके अंदर हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे किस तरह से काम करेंगे, तो सबसे पहले आपको ब्रेन के बारे में जानना होगा। फिर उसके बाद इसके अंदर जो बॉडी एक्यूपंक्चर है, जो आप बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग सीख भी रहे हैं। फिर उसके साथ हमको आगे क्या करना है, इसके लिए स्काल्प एक्यूपंक्चर, ईयर एक्यूपंक्चर, जामा स्पेशली ऑन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे बहुत काम करता है। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो एक्यूपंक्चर से आपको, जैसे स्काल्प एक्यूपंक्चर, तो स्काल्प एक्यूपंक्चर ऑलरेडी वो क्या अपना इटसेल्फ वो बता रहा है कि स्काल्प तो मतलब कि हम वो सारा काम कहाँ पे करेंगे, हेड पे करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स की आपको स्काल्प पे आपको स्काल्प न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे स्काल्प एक्यूपंक्चर मिल जाएगा विद द टीसीएम, ये जो आप बॉडी एक्यूपंक्चर करते हैं उसके साथ मिलता है। ईयर एक्यूपंक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी काम करेंगे और पेन मैनेजमेंट में भी काम करेंगे। इसी तरह ये कंबाइंड जो कोर्स है एडवांस इंटेंसिव कोर्स का, ये आपको आगे बहुत सारी चीजें बताएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सर, क्या पार्किंसन 100% ठीक हो सकता है क्या अपने से? एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, डिजीज कैन बी क्योर, डिसऑर्डर कैन बी मैनेज। डिजीज को क्योर किया जाता है, डिसऑर्डर को मैनेज किया जाता है। तो अभी पार्किंसन के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी लेग रिजिडिटी, तो पेशेंट को क्या, वॉकिंग प्रॉपर कर लेगा। फेमर्स है, फेमर्स कम हो जाएंगे, काफी कम हो जाएंगे। वो चीजें क्या है कि आपको जो चीजें दिखेगी वो आपको पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज है, तो मोटर न्यूरॉन डिजीज में, एक मिनट बंद करो इधर ना। मोटर न्यूरॉन डिजीज है, तो मोटर न्यूरॉन डिजीज में अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज, लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज, आप इसको जब भी निकालेंगे तो इसके अंदर आपको न्यूरॉन मिलेंगे, एमएनटी पेशेंट रहेगा, लेकिन उसके अंदर क्या सिम्टम्स इंप्रूव होगी। राइट, क्लियर? मतलब 100% इज नॉट क्योर्ड, मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग। मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिसऑर्डर कैन बी मैनेज। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। अभी जैसे पैरालिसिस है, तो पैरालिसिस के अंदर क्या होता है, बंद करो यार। पैरालिसिस के अंदर क्या होता है, अभी पैरालिसिस में आपको ये जानना पड़ेगा, देखेंगे अभी हम लोग कि पैरालिसिस में टाइप क्या होती है, क्वाड्रिप्लेजिया क्या होती है, हेमिप्लेजिया क्या होती है, पेरिप्लेजिया क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या आता है। आपके पास जो पेशेंट आता है वो क्या आता है, वो ऑलरेडी वो होता है कि उसको पैरालिसिस हुआ है, लेकिन हम उसको टीसीएम के अकॉर्डिंग उसको डायग्नोज करते हैं। हमारी जो डायग्नोसिस होती है वो कैसे होती है, वो टीसीएम के अकॉर्डिंग होती है। तो उससे लेकर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो काफी इंप्रूवमेंट होता है। तो एक्यूट कंडीशन के अंदर काफी इंप्रूवमेंट होता है। क्रॉनिक कंडीशन के अंदर इट विल बी टेक अ टाइम। क्लियर? ओके, राइट। चलिए, तो अभी जैसे न्यूरो पे हम लोग का हुआ,
एक सेशन भी हमारा पेन मैनेजमेंट पे होगा। आई रिक्वेस्ट मैम प्लीज। Excuse me. पेन मैनेजमेंट नहीं कहाँ गया मेरा? आप लोगों ने दोनों ने कॉपी पेस्ट किया था क्या? यस सर। लेक्चर करके पूरा राइजिंग right? Hi students, so you guys are back with me again, ठीक है? So अभी हमने ये तो समझ लिया कि नर्व कंप्रेस हो गया तो क्या लगता है, क्या सेंसेशन आता है, क्या होता है, बट हमें सिर्फ नर्व के रिलेटेड नहीं रहना। हमें अगर मसल इंजरी हुआ तब कैसा लगेगा, अभी अभी मसल इंजरी हुआ है, एक्यूट मतलब अभी अभी, तो क्या सेंसेशन आएगा, क्रोनिक मतलब बहुत टाइम हो गया है उस मसल इंजरी को, तो आपको कैसा पेन होना चाहिए। So here you are with me. Today we will get to know about types of pain. You should know your pain, that what is that pain. My name is Dr. Smriti Yadav. I'm a master's in neurophysiotherapy. I'm a certified nutritionist, ergonomist, and a member of Indian Association of Physiotherapy. So what is pain? Pain क्या होता है? Unpleasant. Unpleasant. अच्छा नहीं लगने वाला, ठीक है? सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, ठीक है? पेन जब होता है आपको फील होता है, सो दैट इज अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस. सो पेन कैन ओनली नॉट बी सॉरी पेन कैन ओनली नॉट बी फिजिकल, इट कैन बी समटाइम्स साइकोलॉजिकल ऑल्सो. बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे जिनको कुछ नहीं होता फिर भी कंप्लेन करेंगे कि पेन है, but then never take them lightly, because sometimes even psychological pain, there are studies on PubMed if you want to go and read, that even the psychological pain, the psychological social pain can even produce the same symptom as physical pain, ठीक है? तो unpleasant sensory emotional experience, ठीक है? अब क्यों होता है? क्योंकि there could be any tissue damage, ठीक है? What is pain? Unpleasant sensory emotional experience because of any tissue damage. समझा students? Am I clear? Yes. Yes, ma'am. Yes. अब ये चीज मुझे आप समझाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हम इसके पहले वाले लेक्चर में एग्जैक्टली बात कर चुके हैं, एंड मुझे पता है कि ये डायग्राम अभी आप सबको समझ में आ रहा है कि ये इसने हैमर पकड़ा है
इसने हैमर से अपने दूसरे हाथ को मारा, तो क्या होगा मुझे फटाफट बताओ, ये आपको पता है, मुझे आई नो दिस, कम ऑन गिव मी द आंसर। सीधा स्टूडेंट्स सेंसेशन ब्रेन में जाएगा और पेन का फीलिंग आएगा, और ब्रेन वापस मोटर नर्व से हमको सेंस देगा कि भाई हाथ हटा लो, हैमर बज रही है, पड़ेगी या गिर इंजरी हो जाएगी ज्यादा। फिर वेरी गुड, व्हाट इज योर नेम? चेतन ठक्कर। चेतन, अच्छा, यू आर ओनली देयर, वेरी गुड आंसर। सो हैमर मारा, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व ब्रेन तक लेकर गया, ठीक है। फिर वापस कौन बोलेगा कि हाथ हटा वरना हैमर से मार पड़ेगी? मोटर नर्व। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या करेगा? सेंसरी नर्व ये सेंसेशन ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन बोलेगा नॉशियोसेप्टिव फीलिंग है, नॉशियोसेप्टिव मतलब पेन, ठीक है। फिर मोटर नर्व बोलेगा हाथ को, ये बाबा हटा नहीं तो बहुत दर्द होगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली द सेम चीज जो अभी हमने न्यूरो के लेक्चर में देखी थी। सो बेसिकली हमने आधा पेन हमारे पहले वाले लेक्चर में ही पढ़ लिया है। सो दैट्स व्हाई ये मुझे स्लाइड्स आप ही खुद बताते जाएंगे, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे सेम चीज मैंने आप लोगों के लिए सेम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके रखा है, बट विथ फेदर, ठीक है। क्या होगा प्लीज मुझे कोई एक आंसर करो, आप फेदर से खुद को कर रहे हो तो क्या होगा, टेल मी। स्मूथ इचिंग होगा, स्मूथली अच्छा लगेगा, सेंसेशन आएगा। क्या बोलेगा? प्लीज कंटिन्यू। आपका ब्रेन क्या बोलेगा? प्लीज कंटिन्यू। तो आपका मोटर नर्व क्या बोल रहा है? प्लीज कंटिन्यू, ठीक है। अभी देयर आर टू पेयर, दिस इज तो अ गुड फीलिंग, बट अगर आपको कोई हैमर, अगर आपको कोई नेल चुभ रही है, ठीक है, तो आपका सेंसरी नर्व जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन बोलेगा नॉशियोसेप्टिव फीलिंग है, नॉशियोसेप्टिव मतलब पेन, तो आपका ब्रेन आपको मोटर सिग्नल क्या भेजेगा? हाथ हटा लो, ठीक है। अच्छा, लेट्स प्ले अ गेम। आई वांट 3 ऑफ यू टू आंसर, लाइक 3 सिनेरियोस, एक उसमें आंसर करेंगे, ठीक है। मुझे बताना है सेंसरी क्या है, मोटर क्या है, ठीक है। मैं चल रही हूं, मेरे पैर में सुई चुभी, ठीक है, अभी इसमें सेंसरी क्या होगा, मोटर क्या होगा, प्लीज मुझे बताओ। मतलब पेन का सेंसेशन वो सेंसरी है, और मोटर नो में वो बताएगा आप पैर हटा लो, आप नहीं तो ज्यादा चुभेगा या ज्यादा इंजरी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेन फाइबर, ए डेल्टा एंड सी, ठीक है। ए डेल्टा मतलब क्या होता है? क्विक इंटेंस पेन, खून निकलने लगा, बहुत चुभ रहा है, ए डेल्टा का डायमीटर छोटा होता है, इसलिए फटाक से ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। अभी सी फाइबर मतलब थ्रॉबिंग पेन, क्रोनिक पेन मतलब जिसके साथ आप बहुत टाइम से जिए जा रहे हैं, आपका ब्रेन सेंसिटाइज हो गया है उससे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड सी फाइबर। अभी टेल मी बाय लॉजिक, ठीक है, आपको क्या लगता है ब्रेन में फास्ट क्या ट्रैवल करेगा? ए डेल्टा ट्रैवल करेगा या सी ट्रैवल करेगा? ए। वेरी गुड, व्हाई? because it is a quick because it is a quick intense pain, ठीक है। अभी पेन के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि ड्यूरेशन, अक्यूट, क्रोनिक। अक्यूट मतलब अभी अभी आया है, क्रोनिक मतलब बहुत टाइम से दर्द हुए जा रहा है, चला रहे हैं, ठीक है। लोकेशन कहां पर है, डिस्टल है, प्रॉक्सिमल है, कहां पर है, ठीक है। अभी डिपेंडिंग अपॉन द पैथोफिजियोलॉजी कि आपका दर्द किस वजह से है, ठीक है। इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब कितना है। सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज थिंग्स वी कैन क्लासिफाई द पेन। ईटियोलॉजी सेम, किस वजह से है, कितना है, कहाँ है, कब से है। पेन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? कब से है, कहाँ है, कितना है, क्यों है, ठीक है। दैट इज ड्यूरेशन, लोकेशन, इंटेंसिटी, ईटियोलॉजी। सबको समझा पेन अभी तक?
यस मैम। नॉशियोसेप्टिव मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? नॉशियोसेप्टिव पेन का सेंसेशन जो आपका ब्रेन भेजता है कि बाबा नॉशियोसेप्टिव है। नॉशियोसेप्टिव मतलब पेन वाला सेंसेशन, ठीक है। अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट मतलब अभी अभी पेन हुआ है, क्रोनिक मतलब कब से है, चल रहा है, चला रहे हैं, ठीक है। अक्यूट मतलब सडनली आया हुआ पेन है, जिसको आप सडनली ठीक भी कर सकते हो, आप उसको डायग्नोस करके ट्रीट करके खत्म कर सकते हो, ठीक है। क्यों हो रहा है? कुछ टिश्यू को इंजरी हो गया, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ गया, ठीक है। अभी क्रोनिक क्या है? बहुत टाइम से है, महीनों से है, ठीक है। मे बी एसोसिएटेड विद अ डिजीज, कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत टाइम से है, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, ठीक है। एंड क्रोनिक पेन्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट टू ट्रीट कंपेयर टू द अक्यूट पेन, ठीक है। अभी ये क्रोनिक पेन का साइकिल है, ठीक है। अभी आपको बहुत टाइम, लेट्स सपोज आपको मसल स्पाज्म हो गया है, ठीक है। मसल में आपको स्पाज्म आ गया है। अभी क्या होगा आपका मसल स्पाज्म? आपके मसल को सिग्नल जाएगा, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, अरे मसल स्पाज्म हुआ है, आपका बॉडी आपको बोलेगा भाई वो मूवमेंट थोड़ी देर अवॉइड कर वरना तेरे को बहुत दर्द होगा, ठीक है। फिर वहां पे सूजन आ जाएगी। अब सूजन क्या है? इन्फ्लेमेशन, बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सूजन क्यों आती है आपको? दैट इज बॉडीज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू टेल यू दैट दिस पार्ट इज इंजर्ड, आज प्लीज इसको रेस्ट करने दो, and you do not use it more, so body creates inflammation, that is सूजन as a protective mechanism, ठीक है। अब ये बहुत टाइम से हो गया, आपका नर्व उस पेन से सेंसिटाइज हो जाएगा। मैं आपको क्रोनिक पेन की साइकिल बता रही हूँ, ठीक है। क्रोनिक पेन जो बहुत टाइम से है, ठीक है, आपका नर्व उस पेन से यूज टू हो जाएगा, ठीक है। आपका सेंट्रल सिस्टम उस पेन से यूज टू हो जाएगा, ठीक है। आपको वो पेन मतलब आपको वो पेन डे टू डे में आप एक्सपीरियंस करने लग जाओगे, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ क्रोनिक पेन डेली 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 यू कैन इवन सफर फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है। योर ब्रेन कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन, योर ब्रेन वुड बी मतलब आपका ब्रेन भी एडजस्ट कर लेगा, यार ये तो क्रोनिक पेन है, ठीक है। एंड देन दिस इज द साइकिल ऑफ योर क्रोनिक पेन, कि क्रोनिक पेन कैसे आपको पूरा टाइम, लाइक हाउ यू गेट यूज टू क्रोनिक पेन, ठीक है। अभी डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, कि सी पेन कैन बी मस्क्यूलर, जिम मार लिया गिर गए, मस्क्यूलर पेन, ठीक है। बोन, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। नर्व, नर्व पेन तो सबको पता है, एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद नर्व पेन, यस और नो क्लास? यस। पेन ये थोड़ा नया है। व्हाट इज विसरल पेन? विसरा, विसरा मतलब होता है इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन योर विसरल ऑर्गन और उसकी वजह से कोई पेन आ रहा है, देन दैट इज विसरल पेन, ठीक है। अभी न्यूरोपैथिक पेन क्यों होते हैं? ऑल्दो हमें ये पता ही है, बट स्टिल वी विल गेट बैक टू इट अगेन, ठीक है। एम्प्यूटेशन, एक्सपोजर टू ड्रग, अल्कोहल, ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी, वायरल इंफेक्शन, वैस्कुलर रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड पेन, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, कुछ सर्जरी हो गया, ड्रग्स, अल्कोहल, टॉक्सिन से आपका एक्सपोजर हो गया, ठीक है। वैस्कुलर रिलेटेड न्यूरोडेजनरेशन, अंधेरी। sorry, any doubts guys? अभी पेन का क्लासिफिकेशन, नॉशियोसेप्टिव पेन, ठीक है। सोमैटिक मतलब स्किन, विसरा मतलब ऑर्गन, ठीक है। अभी दो क्लासिफिकेशन है इसके, नॉशियोसेप्टिव पेन अभी या तो स्किन मसल से ओरिजिनेट होके हो रहा है, या तो विसरा, विसरा मतलब अभी मैंने क्या बताया था, विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन में कोई कंडीशन है उसकी वजह से कोई पेन हो रहा है, दैट इज विसरल पेन। सेकेंड इज
न्यूरोपैथिक पेन, पेरिफेरल पेरिफेरल पेन, पेरिफेरल डिजनरेशन बताया था मैंने, उसकी वजह से हो रहा है। सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन है, सेंट्रल सिस्टम में कोई डिजीज है, इटियोलॉजी है, कुछ हो रहा है, उसकी वजह से पेन आ रहा है। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ कि अगर आपका नर्व इंजरी है तो आपको किस तरह का पेन होगा? कैसा पेन होगा? वी जस्ट डिस्कस्ड इट इन द लास्ट लेक्चर, कम ऑन। न्यूरोपैथिक पेन। कैसा होगा वो? कैसा लगेगा? बर्निंग। कैसा लगेगा वो? बर्निंग। अभी आप कैसे पूछोगे कि आपको पेन कितना है? सो दिस इज कॉल्ड एज वास, वास, विजुअल एनालॉग स्केल। आप पेशेंट को बोलोगे कि अगर 0 मतलब बिल्कुल पेन नहीं है और 10 मतलब इतना दर्द है कि आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, तो ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 आपका पेन कितना है? ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू जज कि पेशेंट का पेन कितना है और हमारे ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को कितना रिलीफ हुआ है। तो आपको पेशेंट ऐसे परसेंट वाइज बता देगा कि यहाँ पे आने के पहले मेरे को 90% पेन था और अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, अभी मेरे को सिर्फ 5% है। ठीक है, सो दिस वे यू विल बी एबल टू जज योर ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी आइडेंटिफाइड पेन। ठीक है, चलो ये मस्कुलर पेन है। ठीक है, इसमें कैसा लगेगा आपको? पेशेंट आपको क्या बोलेगा? थ्रॉबिंग पेन हो रहा है। ठीक है, थ्रॉबिंग पेन मतलब क्या? कि मसल एक हो रहा है, मांसपेशी में दुख रहा है। ठीक है, दैट काइंड ऑफ पेन इज मस्कुलर पेन। ठीक है, अगर नर्व्स के थ्रू पेन होगा तो पेशेंट क्या बोलेगा? कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, और अभी नर्व का पेन हुआ तो क्या होगा आपको? लॉस ऑफ फीलिंग, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन, नमनेस, नम मतलब कुछ पता नहीं चलना, टिंगलिंग, टिंगलिंग मतलब पेशेंट क्या बोलेगा कि ऐसा लग रहा है कि चींटियां रेंग रही है मेरे अंदर, दैट इज टिंगलिंग। दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, चींटियां रेंग रही है, ऑफ टिंगलिंग पेशेंट विल कम एंड टेल यू। ठीक है, टर्न योर पेन इनटू योर पावर बाय नोइंग योर पेन। यू शुड नो योर पेन कि क्यों हो रहा है। either it is nerves, either it is muscular, either it is visceral organs. So students, I hope that this lecture was informative for you. I hope कि मैं बहुत in depth नहीं गई, I hope my speed was not too much, but I really want, if you have any doubts, please come forward and ask. Any Very much doubts? informative. Oh, thank you so much. But do you have any doubt? You want to discuss something? Please let me know. No doubts? I'm such a good teacher. Thank you so much. I'll take that as a compliment. Goodbye. Yes, ma'am. हेलो गाइस, अभी आपने देखा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, टाइप, सिम्टम। अभी फिर आपने उसके बाद देखा पेन, टाइप ऑफ पेन, कितनी तरह के पेन होते हैं, कौन से पेन नर्व से रिलेटेड होते हैं, कौन से मसल से है, कौन से रेफर्ड पेन होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि कुछ पेन ऐसे होते हैं, किडनी स्टोन है, आपको पता नहीं है, आप बैक में एक पंचर कर रहे हैं, हिजामा कर रहे हैं, कपलिंग कर रहे हैं, मॉक्सिबशन कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या किडनी स्टोन है, या कोई प्रॉब्लम क्या एब्डोमिनल है, यानी उसको कोई गैनिक इशू है, लेडी है, तो वो क्या रेफर करता है। तो ये सारी जो चीजें, ये आपको एडवांस इंटेंसिव कोर्स में ये डायग्नोसिस आपको ये बताएगा कि ये जो टाइप ऑफ पेन है इसको किस तरह से आप डायग्नोज करेंगे, किस तरह से ट्रीटमेंट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, अभी अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका जो थेरेपेटिक पार्ट है, या इसमें हम क्लिनिकल मैनेजमेंट जिसे आप कह सकते हैं कि कैसे इसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे, स्काल्प के थ्रू, ईयर के थ्रू, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, लेट्स लगा दो ना, लगा, हाँ, इसको
चलिए आते हैं हम लोग, फिर देखते हैं स्काल्प एक्यूपंक्चर पे किस तरह से काम करते हैं। स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट किया। Good afternoon. See, I was listening the earlier lecture. Somebody said there are no cure for Parkinsonism. There are many diseases in neurologically. There are very long treatments are given. Like example, epilepsy. A medical doctor, neurologist prescribe the anti-epileptic drug 10 years, 20 years. After 10 years or 20 years also, what is the condition of patient? Patient has to continue the drugs. Now, physician duty is sometimes to cure, often to relieve, and many times just to prevent the disease. Now, many disease does not cure. If you are treating the patient is not getting cured, does not patient get the relief for the symptom? He requires the relief for the symptoms. If somebody have a convulsions, do you want to patient has to suffer the convulsions lifelong, or do you want to treat it? So what physician duty or what acupuncturist duty is to cure the disease. If not cure, then control the disease or control the symptoms and prevent the disease. So our aim is to prevent. Like example, Parkinsonism. Parkinsonism, there is a spasticity there, tremors are there. Patients are suffering from the day-to-day movements of the disease, movement of the normal movements of this. If person want relief with this, there is a drug is given. If the drug is not relieving, the acupuncture playing the part. Acupuncture playing the part. So our duty is to, as a acupuncturist, to cure the many times. If patient is not cured, then you have to control the symptoms, or sometimes you have to prevent the disease. Now, you learn the body acupunctures on the meridians. On the meridians, that is what you treat the disease is by body acupuncture. Then there are ear acupuncture. There are nearly 200 points on the ear. All organs, parts of the body, they are represented in the ear. Similarly, what we are going to discuss today is a head needle therapy, or it is called scalp acupuncture. Head needle therapy or scalp acupuncture came in 1966 to 1969. So this is developed in China 1966 to 1969 period. Now in 1965, Dr. Jiao Zhengfa, who is a neurologist that time, Dr. Jiao Zhengfa is about treating the hemiplegia patients by the traditional medicine systems. And he observed many patients were not responding with the medical treatment. So he was not having with the response with the hemiplegia patient. So he started putting the needles on the
body so-called corresponding to the motor area of the brain. So-called motor area of the brain. So when you put the needles, when you put the needle on the motor area of the brain, immediately within a few minutes, patient started responding on the contralateral side, opposite side of the brain. There's some sensation of the body. Some movement started, muscle twitching started, and then little free movements of the hands are there after 20 minutes. So this is what is labeled as a motor area of the body. So our brain have a different parts, cerebral cortex of the different parts, different lobes are there, gyri and sulci are there, have different functions of this, which are anatomically or topographically are corresponds to the scalp area. That is a various area is a comes in the scalp acupuncture. The scalp acupuncture mainly treats the locomotor disorders, pain part, and neurological disorder. All neurological disorders, scalp acupuncture is a better treatment than the body acupuncture. Now, body acupuncture, when you are treating the like a locomotor disorder, skeletal muscular disorders, like knee joints, backache is there, arthritis there, you get very good response with that. Ear acupuncture, when you treat with the organ disorders like a bronchial asthma, bronchitis, gastritis, the ear acupuncture is better response with the organ disorders. But neurological disorder, brain disorder, where the pathology in the brain, the scalp acupuncture is mainly useful for controlling the neurological disorders of the body. So there are first discovered is the motor area of the body, that is by Dr. Jayo Senpa, and that is in 1965. And then system is established and research is done more in the 3 years 1966 to 1969. Now then various scientists or various doctors discover different area, and that is a sensory area and other. There are 15 total areas of the scalp acupunctures are there. Today what you are going to learn. There are 16 areas today, you are going to learn one more area, that is in the scalp acupuncture. So now, look at the scalp acupuncture, there are various areas we are going to learn today, and different part of the brain in that functioning are there. So we'll see that how to look at this different. Next slide, please. We'll not go on the anatomy side. Let's see next slide. Next slide. Next. Yeah. Okay. That is just we have discussed Jayo Senpa. He is the first neurologist who discovered the motor area in 1965. And then next slide. Next slide. Next. Okay, we are not going on the brain part and other thing. Next. Today we will discuss on the more practical side. Next. 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 Your. Next. 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 One minute. Your turn. Now, what are the needles to be used? Whether we use the standard needles, actually we are using a little same needle, Philippine needles, or special scalp needles are there, little thicker. It is called double barrel needle. But that routinely we are not using double barrel needle in the practice. The same needle which are used on the 25 to 30 number, 28 number averagely we are using, so 25 by 25 or 20 by 30. We are using by acupuncture needle. The scalp is a greasy area. Many put Indian styles, they are putting a lot of oils inside and there are dirty scalp. So scalp you will find in some of the dandruffs and other things. So most precaution you should take. Scalp should be very clean. If you put the needle, there is a reinfection. Any infection can come with the acupuncture. So scalp should be, hair should be washed thoroughly with the soap and water, and 75% alcohol should be applied on the dish. Or 2% iodine, like you can apply at the local area, but routinely just
Hair should be washed with the soap and water, and hair should be clean with this. Now, needles insertion should be 30 to 40 degree angles. We are not putting the perpendicular needles or horizontal needles. It's just a 40 degree, 30 to 40 degree angles. With rotatory movements, the needles are kept. Usually, lifting, thrusting, much not done, but the very little lifting, thrusting, and rotatory movement like a screwing. Just go on the parts of the body. And moral, this is not a point. See, body, what we are going to learn is a point. Acupuncture points are there, which are few millimeter size. Here is a line. Area is a line. Motor area is a line of the maybe 10 centimeter, 8 centimeter, depend upon the size of the head. So according to that area, whatever is covered, that line you have to put the needles. Now, you have to, needles should be kept for as usual like 20 minutes, 30 minutes, we are keeping like a body acupuncture. You can put the stimulate the hand stimulations there, or you can give the electrical stimulation with the 200 frequency. Now, what the needle sensation they get? See, when you are putting a body acupuncture, patient develop the deki, heaviness, numbness, soreness. That feeling they get. They feeling they get at the site of the needle. In head needle sensation, they are not getting the sensation or the head region. Now, where do they get the sense? So, head needle sensation you should learn. That is, you can observe in the contralateral side of the body. If you are putting a right side of the brain, scalp acupuncture, you get the effect on the left side of this. That is a twitching of the muscles, numbness is there, or contractions of this, or heaviness the patient feels. Patient will tell you that my hands are heavy, or some numbness is developed, tingling numbness there, or twitching of the muscles developed. That is, head needle sensation comes on the contralateral side of the body. Contralateral side of the body. This needle sensation, head needle sensation lasts for few minutes, maybe 10 minutes, 15 minutes. Ten to 15 minutes, sometimes it lasts hours, sometimes day, and sometimes weeks. The longer the stimulation, longer the sensation develop, they feel that more better results are there, but not practically everything. Even sometimes patient don't feel the sensation and the clinical results comes. So head needle sensation is the main characteristic in the scalp acupuncture. That is not the sensation of the area of the body where you are putting the needle. They don't feel on the head needle sensation on the scalp area. They feel the sensation the which area you are covered, contralateral side of the body, like the upper extremity, lower extremity, whichever the paralysis sites are there. They feel the movement of the twitching of the muscles and the numbness they will feel. Tingling numbness sometimes they feel. This lasts maybe few minutes, you say 10 to 15 minutes, maybe last for some hours and sometime in the day. When after getting the treatment, patient complaint usually next day comes that my leg is become very heavy. This is a normal sensation and that is a good sign if the patient feels heavy. When paralysis is there, usually they can't lift the leg. And that is after the treatment, they feel more, they can't lift the leg because they feel the heavy because of the head needle sensation of the body. So scalp acupuncture produces the head needle sensation of the body. Now, there are scalp acupuncture does mainly for the paralysis, neurological disorder. Does it control the pain? Yes. There are sensory area, motor area, speech area, mainly pathology which are in the brain. That is the way the scalp acupuncture is there. Like bronchial asthma, where is the pathology? In the lung. So scalp acupuncture do help in the some, but not mainly used for the bronchial asthma, cardiac pain, or any other chest pain, or any other region. But mainly for neurological disorders, whatever that earlier you learned on the neurological disorders of the body. So now, sensory area, acupuncture, scalp acupuncture also used for anesthesia during surgery. They have found out what is the problem with the body acupuncture anesthesia. The muscle relaxation they were not finding. They were giving the sensation was not there, pain was not feeling there, but their muscles were not relaxed. So surgeons who are operating on this part,
they find very difficult to operate on the acupuncture anesthesia. Scalp acupuncture, body acupuncture, and a ear acupuncture. We are combined in this acupuncture anesthesia to get the better relaxation. And there is a prolonged anesthesia develops with the scalp acupuncture. So scalp acupuncture mainly used with the sensory area. Scalp acupuncture, ear acupuncture, and body acupuncture, all three combined together to produce the prolonged anesthesia. Suppose you want a very long time relief of the pain. You are combining the scalp with the ear, scalp with the body, or ear with the body, acupuncture like this to prolong the effects of the acupuncture anesthesia or relief of the pain of the acupuncture anesthesia. What are the different? Locate the points. There are four lines are to be measured. This is not, I told you, is the area, not the points. It's not millimeter of the point. There is an area. So that line of area, which are the millimeter of line view, that line to be covered with the needle. There are four lines to be drawn to locate the acupuncture points, scalp acupuncture points. So one is the anterior posterior midline from nasal end between the two medial end of the eyebrow to the occipital protuberance. You have to draw the line from the middle nasal end to the occipital protuberance. So what you can use? Measuring tape, like the tailors are using the measuring tape. You have to put the tape from the nasal end to the occipital protuberance. You have to measure how much total length is. Suppose it is 18 centimeter or 36 centimeter. Usually the 34 to 36 centimeters are there. So that is a total length of the nasal end to the occipital protuberance is a 34 centimeter example. Now what is the midpoint? What is the midpoint of this? It is 70. Suppose we have taken measurement as a 34 centimeter. So these measuring tapes, can you see that? Now, this is the middle and middle end of the eyebrow center, glabella. This is the glabella or nasal. This is called glabella or nasal, and between this one to the occipital protuberance. Now, this is exactly 34 centimeter in Dr. case. So what is the first you have to find out the midpoint? Midpoint of this 34 centimeter is a 17 centimeter. So this is 17 centimeter. This is a anterior posterior midline. So this anterior posterior midline will help to locate the points. You have to midpoint, put the one needle just to as a landmark. Now second line is the midpoint of eyebrow to the occipital protuberance. This is the eyebrow occipital line. This is the eyebrow occipital line. So there are two eyebrow occipital lines. This is a two eyebrow occipital line. And we are not to measure where this eyebrow occipital line crosses the anterior hairline. So this is a crossing the anterior line. This is the lower point you have to find out. So upper point you have to find out on the anterior posterior midline. That is a 0.5 centimeter behind the midpoint. So 17 centimeter was the midpoint and 17.5 centimeter was behind the upper point. The lower point is the eyebrow occipital line. So the eyebrow occipital line is the two sides, right side and left side of the body. So these two lines, eyebrow occipital line from midpoint of the eyebrow to the occipital protuberance on the right side and left side. So there are two lines you can find out, and this where eyebrow occipital line crosses the anterior hairline. This is anterior hairline. And where crosses, there is a lower point. You have to connect the lower point and upper point. Suppose this is a upper point and this is a lower point. So you have to just connect the upper point and lower point. So that is a just, you can say 15 centimeters, just to understand the 15 centimeters. Yes. So this line is a motor area of the body. Now, before going in a motor area, there are four lines you have to understand this. So I'll repeat the two lines which we have discussed. The glabella or nasal end between the medial end of the eyebrow, this one,
then to the occipital protuberance. This is your midline, anterior posterior midline. You have to find out the midpoint of this measurement. You have to use the measuring tapes there and put midpoint 1 point and 0.5 centimeter, that is upper point. So upper point and midpoint, two needle you put, so that will help as a landmark. And then lower point is the center of the eyebrow to the where anterior posterior midline is crossing, and crossing the anterior hairline is a lower point. This upper point and lower point you connect, that is the motor area. Now what are the other lines you can use? Occipital protuberance is there is a horizontal line you have to draw. This is the one line you can use. What is the anterior hairline? See, this anterior hairline is usually receding, going back in the age advancing over there. So some people you are not asked the question about where the anterior line is absent, what we should do. So this is anterior hairline is receding, is gone in the little back. So this is a glabella, peak and above. This is anterior hairline. So this is line is the anterior hairline. This is not line to be considered because the hair is close to it. So four lines you have to understand it. That is the four line. I repeat, anterior posterior midline. Anterior posterior midline is from glabella or nasal to the occipital protuberance. Second is a midpoint of the eyebrow to the occipital protuberance, eyebrow occipital line. There where it crossing is the lower points of the motor area. So this eyebrow occipital line is a two side, right side and left side. Then horizontal line from the occipital protuberance. There are other area we are going to visual area and balance area we are going to locate. So this is the line which is pulled there. The main is the anterior hairline. Because anterior hairline is receding. So how will you find out anterior hairline? 3 foot above the glabella. This is a 4 fingers with a 3 foot. So this is the anterior hairline. What is this is the receding. And mine is very gone back. The age advancing, they are there. But in some patients, suppose totally hair is removed. So how will you find eyebrow occipital lines crossing the anterior hairline? You cannot find the anterior hairline. So what you can do? So remember, just zygomatic arch, you know, this is the zygomatic arch. Midpoint of the zygomatic arch, you just draw the line. Upper line, perpendicular line here. And where this eyebrow occipital line crosses the upper perpendicular line here, 0.5 in front of that. 0.5 in front of that. So see, this is a zygomatic arch. Suppose this is the zygomatic arch. Now this distance is known, center point, midpoint. So the perpendicular line here. Where this midpoint of the eyebrow occipital line crosses here. This is the point where it crosses, and then 0.5 in front of us. This is a lower point of this. So we have find out the upper point and lower point too. And this upper point and lower point will helpful. सर वो लगा दूं स्काल पर लगा दूं इमेज एक समझ में आ जाएगा हाँ, लगा दो. Next. नहीं लगा एक से नहीं दिख रहा है अब बात करिए Next. हाँ So, yes, yeah that is that. yeah So we have discussed again. I'll remove the anterior posterior midline, right? Clear these four lines. It should be clear in your mind, particularly two lines. So from nasal or glabella to the occipital protuberance, that you have to take the line. yeah I am Just sit somewhere. So this is the glabella to the occipital protuberance. Let's take the measuring tape. Look at the occipital protuberance. Take the measurement. This case 36. So what is the midpoint? Put the one needle on the midpoint. And how to find out midpoint? Upper point 0.5 centimeter behind. So put the another point 0.5 centimeter behind. So this will locate the many other point to helpful us. Now lower point, midpoint of the eyebrow occipital, midpoint of the eyebrow
to the occipital protuberance. We draw the line, this eyebrow occipital line. Where it crosses the mid anterior hairline. So lower point is the anterior hairline. So connect the upper point and middle point. Now this is we are connecting upper point, lower point. This is 70. Divide into the 5 parts. Divide into the 5 parts measurement. So 5.3 after 2 again in the 3. So 3 point something it will come exactly. You have to calculate and divide into the 5 parts. So how you first we are locating the motor point. So we have located the 4 point labella to the occipital midline. That is, you just draw the midline. Upper anterior headline, anterior front line, anterior posterior midline, and find out the midpoint. So one put the 1 needle. So you know that this is 0.5 centimeter behind is the upper point of the motor point. Then next is the midpoint of the eyebrow to the occipital protuberance, where it crosses the lower point. That is a just lower point you can find out there. So this is the lower point, upper point. This is the line. Divide in the 5 parts. Roughly we'll take the 15 centimeter here just to understand. So what is a 5 part? Each part will be 3 centimeter. So upper 1/5, middle 2/5, and lower 2/5. 3 area we have to find out. So this is a line. Upper point and lower point is the motor area of the body. So motor area is controlled by the brain part, precentral gyrus of the frontal lobe. Motor area is controlled by precentral brain part, frontal lobe ka precentral gyrus of the frontal lobe. It controls the voluntary movements of the body. So whenever the person gets hemiplegia, paralysis of the right hand, that movement is controlled by the opposite side, contralateral side of the opposite side. So motor area is controlled the contralateral side of the voluntary movement which are lost in the opposite side of the body. So now this complete motor area cover the paralysis part. So that is this is a motor area there. So divide in 5 parts. So first part, upper first part is a 1/5 part is a lower limb, head, neck, and a trunk. Lower limb, trunk. So upper 1/5 is cover the lower limb, lower extremity, and a trunk part, back side of the body. Back side of the body. Middle 2/5 is the upper limb, upper extremity. So upper hand movement is lost. Middle 2/5 is used. And lower 5th is a use for face and a speech area. Face and speech area. Lower 2/5 is a use speech and a area. So suppose 15 centimeter is there. So what is upper 1/5 is a 3 centimeter. Middle 2/5 is a 6 centimeter. And lower 2/5 is a 6 centimeter again. Again part. Thank you. Yeah. So, can you understand now? Lower 2/5 part of the face area, and it is called the speech area. There is a Broca's area in the brain part which control the speech. So inferior frontal gyrus that is called. So inferior frontal gyrus and Broca's area that control the speech. So motor area controls the lower limb, upper 1/5. That is the lower example. We have 15 centimeter. Then upper 5th is a 3 centimeter is a lower limb paralysis of the contralateral side, opposite side. The middle 2/5 is a 6 centimeter here is the upper extremity. So low head and shoulder, muscle, elbow joint, every movement of this control. And lower 2/5 is the face area, facial paralysis and speech area. That is called first speech, and it is called motor speech. Like the hemiplegia, muscles power is lost. So that speech, muscle power of the larynx muscles. So speech is lost. And that is recoverable. That is nearly you can say 100% recoverable. That is a lower part is a Broca's area. Broca's area controls the speech area, motor speech of the body. So that is called first speech of the body. So motor area, I repeat. So what you do, once you understand the motor area, other area you can understand very easily. So motor area will repeat again. Any question will discuss a little breakdown.
Hello guys, I hope all of you enjoyed or not. Hello, I'm audible. आवाज आ रही है मेरे पास? Yes, sir. Yes, sir. ये डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें डिफरेंट डॉक्टर्स इसमें बात किया। नौ अभी हम लोग इसको कंक्लूजन इसका करना चाह रहे हैं कि ये इंटेंसिव कोर्स क्या है, इसका बेस क्या है, ये सारी चीजें आपको डॉक्टर एलिस बताएंगे डिटेल में। पार्टनर में हम लोगों की सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपके पास आ रहे हैं और आपको ये सारी चीजें बताएंगे। Okay, good afternoon everyone. I hope you have enjoyed the demo lecture and mostly you have understood something. समझ में आया कि नहीं? Yes. Yes, sir. Okay, so we have seen three things in that. एक न्यूरल पार्ट देखा, पेन मैनेजमेंट देखा और हमने स्काल पंचर देखा. So mostly the neural part is more basically is for to understand के nerve और body का connection क्या है. Okay, because for everything nerves are responsible. चाहे आपकी मसल मूवमेंट हो, चाहे आपकी विसरल मूवमेंट हो, चाहे कुछ भी फंक्शन हो, नर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो भी चीज होती है, जो भी सिग्नल जाते हैं ब्रेन से जाते हैं. तो हमें ब्रेन समझना बहुत जरूरी है अगर हम न्यूरोमस्कुलर या न्यूरल पे काम कर रहे हैं तो, राइट. So for in this intensive course we'll see the neural part, then after that we'll see the pain management because mostly pain जैसे आपने definition sorry types of pain देखा जिसमें आपका muscular pain था, pain related to skin, pain related to muscles, pain related to nerves, bones and all those things. So again directly or indirectly nerves are involved in that. So for pain management also हमें neuron और nerve को पढ़ना जरूरी है, right? So the neural thing, muscular thing, pain part, all those things will cover in this intensive course and different modalities to treat all those conditions like skull, auricular, body acupuncture, right? And body acupuncture तो हमने काफी कुछ देखा हुआ है in regular classes, but the scalp and the auricular will go in depth in this condition. And in this intensive course, all the conditions will be covered with detail, like you have seen that epilepsy. So what is epilepsy? How epilepsy, what are the causes, what are the symptoms, what are the management, all those things will be covered in a separate part. Okay. Along with the treatment protocol in acupuncture, or with what all modalities are required to treat that condition or to manage that condition or to give relief in that condition. All things will be covered in this intensive course. So thank you everyone for attending this demo lecture, and we'll signing off for today, and we'll meet on the 13th of the Feb to continue with the session. Thank you everyone.